Good morning, student. Today I am going to continue by the binomial theorem. Some question about exercise 8.1. Exercise 8.1 का आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 40. Exercise 8.1 question number 40. Question is sigma of r equal to 0 to n. Sigma of r equal to 0 to n. 3 to the power r NCR equal to 4 to the power n. We have to prove it. ये हमें प्रूव करना है. So come LHS sigma of r equal to 0 to n 3 to the power r NCR equal to r equal to 0. So NC1 NC0 plus 3 into NC1 3 square into NC2 3 cube into NC3 up to dot 3 to the power n NCn. ये एक्सप्रेशन हुआ and this will be equal to NC0 NC1 into 3 NC2 into 3 square NC3 into 3 cube up to dot NCn into 3 to the power n. आप देखिए इसको this can be written into the form of 1 plus 3 to the power n. आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे अपने बायनोमियल एक्सप्रेशन से तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 plus 3 that is 4 to the power n और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है. Easily you can see that this question, how can we prove this question? तो इस तरह ये एक्सरसाइज लगभग एक और क्वेश्चन नंबर 13 भी कर देता हूं. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज 9 to the power. Question number 13 is 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Prove that this expression is divisible by 64. This is question. And with the help of binomial expansion, we have to prove this. So come and try to solve it. 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9. This can be written as 9 to the power n into 9 to the power 1 minus 8n minus 9. 9 to the power means 9 को आप ऐसे ही रखिए. 9 को लिखिए 1 plus 8 to the power n plus 1 minus 8n minus 9. ऐसे आप उसको
up to dot 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 minus LCM n plus 1 c n plus 1 8 to the power n plus 1 minus 8n minus 9. थोड़ा और इधर से मैं इसको नोट करता हूं. सो n plus 1 c0 plus n plus 1 c1 into 8 n plus 1 c2 into 8 square plus dot 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 n plus 1 c n plus 1 8 to the power n plus 1. ऐसे थोड़ा यहाँ पे नोट करता हूँ. n plus 1 c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू n plus 1. बाकी को कोई चेंज मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए. माइनस 8n माइनस 9. यहाँ पर आप देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 8n प्लस 8 प्लस n प्लस आप यहाँ पे भी देखिए 8 स्क्वायर अगला 8 क्यूब 8 4 8 टू द पावर n प्लस 1 और स्टेप से 8 स्क्वायर कॉमन n प्लस 1 c2. नेक्स्ट आपका होगा जो भी n प्लस 1 into 8 to the power 2 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. ये तो 8 और 1 कितना होगा 9 प्लस 8n 64 ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ और आप देखिए इस n प्लस 1 c2 जितना भी मैंने ब्रैकेट में इसको नोट किया सबका ये क्या है वो फैक्टर है. सो यू कैन से दैट इजीली दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64. अगर ये 64 का को फैक्टर है तो डेफिनेटली फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n this expression is divisible by 64. is the most important question for this exercise. तो इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं. आप पहले भी किया गया है, ऑफलाइन में भी किया गया है, ऑनलाइन में भी मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं. अब नाउ वी विल रीड अबाउट जनरल टर्म एंड मिडल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन. जनरल टर्म एंड मिडल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन. जनरल टर्म एंड मिडल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन. ये ax plus a to the power n in the expression of x plus a to the power n, tr plus 1 is known as general term and ncr x to the power n minus r a to the power r, this is known as general term, is called जनरल टर्म. जनरल टर्म यहां से आप किसी भी एक्सप्रेशन की किसी भी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं. सपोज दैट आपसे इसकी एक्सप्रेशन में पूछा जाए व्हाट इज द 15th टर्म. दैट 15th टर्म T14 plus 1 R equal to 14 N equal to N. So NC14
help of general term, we can easily get any term in the expansion. Very useful concept of binomial theorem. And middle term, middle term of any expansion is depend on the number of the term, and the number of term of binomial expansion in the expansion of x plus a to the power n, number of terms is n plus 1. हमेशा जितनी नंबर n है, n से 1 अधिक, 1 ग्रेटर देन n, टोटल नंबर ऑफ द टर्म होते हैं. जैसे x प्लस a टू दी पावर 3 में नंबर ऑफ द टर्म कितने होंगे? 4. x प्लस a टू दी पावर 5 नंबर ऑफ द टर्म कितने? 6. 1 प्लस x टू दी पावर 7 में नंबर ऑफ द टर्म कितना? 8. ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ द टर्म को डिफाइन. अब नंबर ऑफ द टर्म अगर हमें मिला, देन मिडिल टर्म की दो कॉन्सेप्ट. मिडिल टर्म, if number of term is odd, suppose that 7 आया, 9 आया, 11 आया, 13 आया, odd number आ गया, then middle term is n plus 1 by 12th term. ये मिडिल टर्म है. और अगर ये इवन आ गया, if number of term is even, तो इसके दो मिडिल टर्म होंगे. कौन? n by 12th term and n by 2 plus 1th term. इसके दो मिडिल टर्म होंगे. तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ द टर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, वो इवन है या ऑड. अगर इवन है तो दिस कॉन्सेप्ट, ऑर्डर टू दिस कॉन्सेप्ट. Easily you can find the middle term of expansion. So come and try to see some question about on the basis of this concept. Exercise number 8.2. First question is, find the coefficient of x to the power 5. Find the coefficient of x to the power 5 in the expansion of x plus 3 to the power 8. ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कोएफिशिएंट हमको किसका चाहिए? x to the power 5. So we consider let x to the power 5 is in tr plus 1, यानी tr plus जो जनरल टर्म है उसी टर्म में हमने कंसीडर किया कि x to the power 5. So tr plus 1 8cr x to the power 8 minus r 3 to the power r. By comparing x को क्या होना चाहिए? पावर 5. by comparing 8 minus r equal to 5 minus 3 r equal to 3. So coefficient of x to the power 5 equal to r की वैल्यू 3 रखें. 8c3 into 3 to the power 3. This is your answer. You can write it
27 इंटू 8c3 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। 27 इंटू फैक्टोरियल 8 by factorial 3 into factorial 5 and that is 27 into 8 into 7 into 6 upon 6 cancel out 27 into 56 ये आपका आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एनी क्वेश्चन, तमाम आपके इसमें कम है, आदि शर्मा में ज्यादा होंगे। एक टॉपिक है हाउ कैन वी फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एनी नंबर्स इन बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हूँ। इसमें 10 क्वेश्चन कोई भी आप किसी भी बुक से 10 क्वेश्चन करेंगे। इसमें x टू द पावर 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। सबको सॉल्व करने का मेथड यही है, आप जनरेटर को लेकर के r की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो x टू द पावर 0 से कंपेयर होगा, अगर वैल्यू दी गई है तो वैल्यू से कंपेयर होगा। ओके, तो आज आप ये वर्क करेंगे, कल आगे हम ले चलेंगे मिडिल टर्म, वन टॉपिक इन वन डे। And I hope all the students of maths class try to read a binomial theorem with seriously. Okay, thank you.